outside the winter is setting in. बाहर तो सर्दी आ रहा है, But we, सर्दी का should, मौसम है। हाँ, but we should ensure that in our spirit it is summer and springtime always. लेकिन हमारा आत्मा में हमेशा हमें जो गर्मी का मौसम और जो स्प्रिंग का मौसम होना चाहिए। Our relationship with the Lord should be warm, ever warmer than ever. हमारा प्रभु के साथ जो संबंध है हमेशा एकदम गर्मी और ताजगी से भरा होना चाहिए। In the same way, our relationship with one another and our attitude towards church also should be warmer and warmer. वैसे ही हमारा एक दूसरे के साथ संबंध और कलीसिया के साथ जो संबंध है उसमें भी बहुत गर्मी या प्रेम में होना चाहिए। So I want to start with a little story, especially for children खास बच्चों के लिए एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, and also for those who want to be like children. और उनके लिए भी जो बच्चा जैसा बनना चाहते हैं। I want to ask this question. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, Was there ever a day in your life, क्या ऐसा कोई दिन आपका दिन में हुआ था? one day you got up, you brushed and you are ready to school and mommy is telling you, today you have no breakfast. आप खाना स्कूल में जाने के लिए तैयार हो गए, अपना दांत घासा, उसके बाद मम्मी बोल रहे हैं आज तुम्हारे लिए कोई नाश्ता नहीं है, तुम ऐसे ही स्कूल में चले जाओ। And she is also saying in the kitchen, we have no provision today, no grains, absolutely nothing today to make breakfast. और आपको ऐसा बुलाया कि रसोई घर में कोई सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। And your papa also coming to tell that he has no money even to buy anything for that day. और आपका पापा भी बोल रहे कि आपके लिए कोई पैसा नहीं है, आपको कुछ भी खरीद के खाने के लिए देने के लिए ऐसा कोई पैसा नहीं है। I believe none of us have probably experienced that. मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा अनुभव नहीं किया है। But I want to tell you it really happened. मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ऐसा सही में हुआ था। Many years back in a city in England, और बहुत साल पहले इंग्लैंड का एक शहर में there was an orphanage where a lot of children were sheltered. एक अनाथालय था जिधर बहुत सारा बच्चों को पाला जाता था। Maybe hundreds, I don't remember the count. शायद 100 से भी ज़्यादा था, मुझे सही से मालूम नहीं है कितना था। So these children, as their routine, they brushed and got ready with their school bags, everything came to the dining room. और जैसा रोज होता था, बच्चे लोग ने अपना दांत घास के, सब लोग हाथ धो के जो खाना का जगह है उधर आए थे अपना नाश्ता करने के लिए। Their plates are set on the table. It's all empty, absolutely nothing on the table. और बर्तन जो भी है, प्लेट सब टेबल पे रखा है, लेकिन वो सब खाली था, कुछ था नहीं उसमें। Normally some bread, some omelette, some milk, everything would be there. But that day is empty. Plates are empty, glasses are empty. साधारण रीति से ऑमलेट रहता था, ब्रेड रहता था, कुछ तो दूध रहता था, पर उस दिन कुछ था नहीं। So, but that uncle who was in charge of that orphanage, लेकिन जो अंकल उस ऑर्फनेज का देखभाल करने वाला अंकल था, his name is George Muller, by the way. उसका नाम तो जॉर्ज मुलर था। He told children, you know, it's almost time for you to go to school. और उन्होंने कहा कि बच्चे आपको तो स्कूल जाने का समय तो हो गया। Let us give thanks to God for the breakfast. हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर ने जो नाश्ता दिया है उसके लिए। And children are surprised, no breakfast, and uncle wanted to give thanks for the breakfast which is not there. और बच्चे तो एकदम चकित हो गए कि नाश्ता तो है नहीं और ये अंकल जो है नाश्ता के लिए धन्यवाद करने बोल रहे हैं। And they were already aware that they don't have even money to buy anything. और उन्हें मालूम था कि नाश्ता खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है उनके पास। And kitchen is completely empty that day. Kitchen is completely empty that और day. रसोई घर में भी कोई खाना तो नहीं था। So this uncle George Muller lifted his hands and prayed. और जो अंकल जॉर्ज मुलर था, हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। Heavenly Father, we thank you for what you are going to give us for today's breakfast. स्वर्गीय पिता, आप जो आज हमारे लिए नाश्ता तैयार करने वाला है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Amen. आमीन। So the moment he closed prayer and thanksgiving for the breakfast, और जैसे उसने इतना छोटा प्रार्थना करके समाप्त किया, there was a knock at the door. और दरवाजे पे खटखटाया कोई तो। So he introduced, I am the owner of the nearby bakery. और उन्होंने कहा कि मैं नज़दीक जो बेकरी है उसका मालिक हूँ।
Last night, while I was sleeping, I was disturbed inside me. और पिछले रात जब मैं सोने के लिए जा रहा था मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था. I felt that probably the children in this orphanage have no food for next morning. और मुझे ऐसा लगा कि शायद कल सुबह के लिए बच्चे जो ये अनाथालय में है उनके लिए खाना नहीं है कल सुबह के लिए. And I got up midnight at 2 a.m. and I baked enough fresh bread for these children. और मैं रात को 12 बजे उठ के इन बच्चों के लिए एकदम अच्छा ब्रेड बेक किया मैंने आज. So this Muller uncle thanked that owner of that bakery. और जो मुलर अंकल है उन्होंने वो बेकरी का ओनर को धन्यवाद बोला. So as soon as he left, someone else was knocking. और वैसे वो गया तभी और किसी ने दरवाजे पे खटखटाया. He said, I am the milkman, I am the owner of the dairy nearby. और उन्होंने कहा कि मैं जो दूध का जो बड़ा डायरी है उसका मालिक हूँ. I was carrying cans of milk to the market. मैं जो एक कैन में जो मिल्क भर के मैं मार्केट में जा रहा था. But right in front of the orphanage, my vehicle got damaged. और जैसे ये अनाथालय से सामने से मैं जा रहा था मेरा गाड़ी जो है खराब हो गया. So I had to empty all those loads and I had to take my vehicle to the repair. So can you please accept all these milk cans? और उन्होंने कहा कि मेरे को अभी ये जो सामान है सब इधर डालना है. आप लोग क्या ये दूध ले सकते हैं ताकि मैं मेरा गाड़ी को ठीक करने के लिए लेके जाऊं. So it is not a story, it is a true incident. ये कोई कहानी नहीं है, सही में हुआ हुआ घटना है. Because this George Muller uncle wrote these things in his own diary. जो जॉर्ज मुलर अंकल है उन्होंने अपना डायरी में ये सब लिख के रखा है. So we can know that we have a heavenly Father who answers prayer. हम जान सकते हैं कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है. And he is eager to answer us our prayer. और वो बहुत उत्सुक है हमारा प्रार्थना का उत्तर देने के लिए. So whatever may be our needs, no need is too little or too big for him. और कोई जो भी हमारा जरूरत है, कोई भी जरूरत हमारा जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा या छोटा नहीं है. So I want to encourage you, dear children, learn to trust God and pray whenever you are in need of something. इसलिए मैं बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आपका जो भी जरूरत है आप परमेश्वर पे भरोसा रखना और प्रार्थना करना सीखना है. Even if your need is as silly as a pencil or a rubber, pray. और आपका जरूरत केवल एकदम छोटा सा एक पेंसिल या एक इरेजर का जरूरत रहेगा तो भी आप प्रार्थना कीजिए. And if you are sick, pray. और आप बीमार हैं तो प्रार्थना करो. Our Heavenly Father is eager, more eager than us to answer our prayers. पर हमारा स्वर्गीय पिता हमसे भी ज्यादा इच्छा रखता है हमें हमारा प्रार्थना का उत्तर देने के So लिए. it's a wonderful thing if you can grow up learning to pray and get that experience more and more about God who answers our prayers. इसलिए अद्भुत बात है अगर हम परमेश्वर का साथ ऐसा बढ़े कि हम अपना प्रार्थना का उत्तर देते हुए महसूस करें और परमेश्वर को वैसा सीखे. So another part of George Muller's story for the papas and mummies and uncles here. और जॉर्ज मुलर का कहानी का दूसरा भाग जो पप्पा और मम्मी और अंकल और आंटी के लिए है. This George Muller used to pray for some of his relatives. और जॉर्ज मुलर जो है अपना जो रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करते थे. For the salvation of some of his close relatives. ताकि उनका जो रिश्तेदार है उनका उद्धार होने के लिए, उनका जो नजदीक का रिश्तेदार है उनका उद्धार होने के लिए प्रार्थना करते थे. I don't know whether it's his own children or his nephews, nieces. I don't remember that. उसका खुद के बच्चे हैं कि उनका भतीजा या और कोई था कि वो मालूम नहीं किसके लिए प्रार्थना करते थे. There were some 6 people, as I remember, before he used to pray continuously daily. और ऐसा 6 लोग थे जिसके लिए वो लगातार हर दिन प्रार्थना करता था. And he's praying for their salvation that they may know the Lord personally. वो उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करके ताकि वे जो है परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जाने. And he was not discouraged. He prayed for them. Answer did not come quickly. It took years he prayed. और उसका उत्तर जल्दी नहीं आया, वो सालों तक उनके लिए प्रार्थना करते गए. So before his death, God answered 4 of his prayers. और उनका मृत्यु के पहले परमेश्वर ने 4 लोगों को उद्धार दिया, या तो 4 लोगों का उत्तर दिया. Even though he was praying for several, maybe decades he was praying in that case, but 4 of them were saved before his death. शायद 10 साल से भी ज्यादा वो प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने खाली 4 लोगों
के बारे में उनको उत्तर दिया। So on his death, but he remembered this. What I heard someone is saying. He remembered his the prayer for two of the people not yet answered. और उन्होंने जब मृत्यु का समय आया तब उन्हें याद किया कि मेरा जो 2 प्रार्थना अभी भी रह गया है। So he was not. He was telling, Lord, I am today I am coming to you. और वो ऐसा बोला, परमेश्वर मैं अभी तेरे पास तो आ रहा हूँ। And he was not complaining to God. Oh, all these I have been praying. I'm going to die today. You did not answer. That is not God. That is not how George Muller told on his last day on earth. वो परमेश्वर से शिकायत नहीं कर रहा था कि इतना साल मैंने प्रार्थना किया, आपने कोई उत्तर नहीं दिया, तो ऐसा कोई शिकायत नहीं था जब वो मृत्यु के समय में था। He told, Father, you saved 4 of them for whom I pray. Thank you for that. परमेश्वर आपने 4 लोगों का उद्धार दिया जो मैंने प्रार्थना की, उसके लिए आपको धन्यवाद। And don't forget about the 2 others for whom I was praying. और बाकी जो 2 लोग मैंने जिनके लिए प्रार्थना किया उनको मत भूलना। I am sure even after my death you are going to answer. मुझे यकीन है कि मेरा मृत्यु हो जाने के बाद भी आप तो उनका उत्तर देंगे। And George Muller died. और जॉर्ज मिलर का मृत्यु हो गया। And it's heard that after his death God answered his prayer. और ऐसा बोला है कि उनका मृत्यु के बाद बाकी जो बचे थे उनका उत्तर परमेश्वर ने दिया। So that is something that incident really personally really encouraged me. और ये एक बात है जो मेरा व्यक्तिगत जीवन में बहुत प्रोत्साहन दिया मुझे। I should not be discouraged even if my prayers are, some of my prayers are quickly answered. मुझे निराश नहीं होना कि मेरा कोई प्रार्थना जो है परमेश्वर जल्दी उत्तर नहीं दे रहा है। I seen some of my prayers God quickly, instantaneously answered. मैंने देखा है कि कोई मेरा प्रार्थना जो है बहुत तुरंत ही परमेश्वर ने उत्तर दिया। But for reasons I don't know, some of my prayers for which I am praying for years not yet answered. पर ऐसा मुझे मालूम नहीं है कारण क्या है, लेकिन ऐसा कोई प्रार्थना है जो मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन आज तक उत्तर नहीं मिला है। But I want to believe that the Lord will answer every prayer I pray according to His will. और मुझे ये विश्वास करना है कि जो भी प्रार्थना मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता हूँ वो सब परमेश्वर उत्तर देगा। I want to believe that every one of them will be answered before my death. मुझे विश्वास करना है कि हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर मेरा मृत्यु के पहले ही कर देगा। But the Lord is an everlasting Lord. Whether I am I'm living or dead, the Lord will answer every prayer which I prayed according to His will. लेकिन परमेश्वर जो है अनंत काल का परमेश्वर है। अगर मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, लेकिन परमेश्वर जो है मेरा प्रार्थना का हर प्रार्थना का उत्तर देगा। There is a verse in 1 Peter chapter 3 which very often encourages me. पहला पत्रुस 3 अध्याय में एक वचन है जो मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है। 1 Peter chapter 3 verse 12. उसका 12 वचन। The eyes of the Lord are towards the righteous, and His ears are attentive to their prayer. क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। Especially that expression, God's ears are attentive to the prayer of the righteous. और खास करके यहाँ पे जो लिखा है, परमेश्वर का जो कान है हमारा विनती सुनने के लिए लगा हुआ है। It is like our children saying, so we'll just hold our ear like hand like that, try to listen very well. जैसा हमारा बच्चे हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हम शायद ऐसा कान रख के सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। That is how the Lord is interested to listen our prayers. वैसा परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए इतना दिलचस्पी रखता है। So this is something we should remember while we pray. ये हमें याद रखना है जब हम प्रार्थना करते हैं। We are not praying to someone who is unwilling to listen or unwilling to answer our prayers. हम ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं जो हमारा प्रार्थना सुनने के लिए रुचि नहीं रखता या तो उत्तर देने के लिए उतना उत्सुक नहीं है। We are praying to a loving Father who is interested to first of all listen what we are praying. हम ऐसा स्वर्गीय पिता की ओर प्रार्थना कर रहे हैं जो हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए बहुत ही इच्छा करता है। And also he is interested to answer our prayers. और वैसे ही हमारा प्रार्थना का उत्तर देने के लिए बहुत ही इच्छुक है वो। So it's always good to have that right image about God. इसलिए हमारा मन में हमेशा परमेश्वर के बारे में एक अच्छा चित्र होना जरूरी है। We can turn to James chapter 5. याकूब उसका 5वां वचन, 5वां अध्याय 13 onwards. 13 वचन से।
13 verse 13 says that if anyone among you is suffering, और 13 वचन में ऐसा लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो, suffering means can be sickness, it can be various struggles, need. If anyone among you is struggling, दुखी हो इसका मतलब या तो बीमारी हो सकता है, लेकिन नहीं तो और कोई जरूरत हमारा मन में हो सकता है, then he must pray. That is what is written. और इधर लिखा है कि तो वह प्रार्थना करे. So it's good. God is eager when we are in need. We must pray. We look to Him. और परमेश्वर बहुत ही रुचि लगता है कि हम जब दुखी है या तो कुछ जरूरत है तो हम प्रार्थना करना है. I always remember this. It is even though I know my own children, if they know, if I know what is their need, मुझे मालूम है कि मेरा बच्चों का अगर जरूरत मुझे मालूम भी है, फिर भी I love if they ask me for it. मुझे पसंद है कि वो आके मुझे मांगे वो जरूरत के लिए. In the same way, I believe God loves us, even though He knows our need. He loves us if we ask Him. वैसे ही परमेश्वर हमारा जरूरत जानता है, लेकिन हम जब परमेश्वर से मांगता है तो उसे पसंद है वो. So I understand prayer means, in a simple way we can say, is a trusting God. प्रार्थना का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं. If we are praying, that means we know we are trusting God. हम जब प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं. Prayer is an expression of our trust in the loving Father. प्रार्थना जो है हमारा जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा का एक हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि हम कैसा भरोसा करते हैं उसके ऊपर. Some people, maybe some of us, we know when we are in struggle, when you are sickness, when you are in need, we become very prayerful. हम में से बहुत लोग ऐसा होते हैं कि हमारा घर में कोई बीमारी है, कोई जरूरत है, कोई परेशानी है, तभी हम बहुत प्रार्थना करते हैं. But when things are going smooth, we neglect God, we don't trust God. जब हमारा जीवन में सब कुछ आराम से चल रहा है तब हम उतना प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर पर उतना भरोसा नहीं रखते हैं. We take things easier. हम सब बातों को बहुत हल्के से ले लेते We हैं. neglect prayer. In other way, we neglect trusting God. हम प्रार्थना को नजरअंदाज कर देते हैं या तो परमेश्वर को हम भरोसा रखने में हम छूट जाते हैं. So that is not a good thing. A good Christian, a good child of God will always trust God. ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छा जो परमेश्वर का जो बेटा है जो हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, That is actually a healthy Christian life. यही है कि एकदम तंदुरुस्त से भरा हुआ मसीह जीवन. If you are just trusting God and pray only when we are in struggle, some problem, that is a basic level of Christian life. अगर हमारा जीवन में कोई समस्या आएगा, कोई तकलीफ आएगा, तभी हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो वो एकदम छोटा स्तर का, ये तो एकदम निचला स्तर का एक मसीह जीवन है. But when things are going very well, we are no shortage, we are no struggle. Even during that time, we know it's after all God who gave me all this, so I need to trust Him. That is a mature, godly way of living. लेकिन जो एकदम अच्छे से सब चीज़ें हो रहा है, हमारा जीवन में सब कुछ सफल हो रहा है, हमारे पास बहुत कुछ है, उस समय में जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वो एक जो सिद्धता की ओर बढ़ने वाला एक मसीह जीवन है. Coming back to James chapter 5 verse 14. याकूब का 5:14 हम वापस पढ़ेंगे. If anyone among you is sick, यदि तुम में से कोई रोगी हो, he must call for the elders of the church and to pray over them, anointing them with oil in the name of the Lord. तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे पर प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें. So verse 15 says, the prayer offered in faith will restore the one who is sick. और 15 वचन में से लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा. In another version it is so emphatically written, the prayer of faith shall heal the sick. और दूसरा एक अनुवाद में ऐसा लिखा है कि विश्वास से किए जाने वाला प्रार्थना से जो बीमार है वो चंगा हो So जाएगा. it's good to know, whatever may be our sickness, even if it's cold, whatever serious or whatever it is, we can pray with the confidence and faith. शायद छोटा बीमारी सर्दी होने दो या तो बड़ा बीमारी होने दो, लेकिन हम विश्वास से प्रार्थना करने से जो बीमारी है उससे चंगा हो जाएगा. So we can trust that the prayer of faith shall heal the sick. हम विश्वास करते हैं कि विश्वास से प्रार्थना करने वाला जो है बीमार से चंगाई हो जाता है. Now there can be many reasons for sickness.
और बीमारी का अनेक कारण हो सकता है. As we living in the fallen world, there are virus, and like anyone else, we also could fall sick. आज जो है हम गिरा हुआ संसार में जीते हैं और बहुत सारा कीटाणु या ऐसा सब है, इसलिए हम बीमार हो सकते हैं. So whatever is this, and God is able to heal us. कोई भी कारण होने दे, लेकिन परमेश्वर चंगा होने के लिए सामर्थ्य है. Either God will heal us or God will answer in another prayer. If God has any specific purpose in that sickness, God will give grace. या तो परमेश्वर हमें चंगाई देगा, या तो परमेश्वर का अगर कुछ उद्देश्य है उस बीमारी के द्वारा, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा. And as we read here, the reason for some sicknesses can be sin. जैसा हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कोई कोई बीमारी का कारण शायद पाप भी हो सकता है. So and even then, if you confess, you repent, God will forgive us. अगर वो कारण भी हुआ, तो हम जब हमारा पापों को मान लेते हैं, हम मन फिराते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करके हमें चंगाई देता है. Yes, and also heal us. And that verse 16 says, confess your sins to one another. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हम एक दूसरे से अपना पाप को स्वीकार करना है. So while praying, this one important thing, we have to check, is there anything I need to confess before the Lord? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये ढूंढना जरूरी है कि क्या मुझे कुछ प्रभु के सामने कबूल करना बाकी रह गया है. We should never condemn ourselves. We can also check, is there any sin in my life is the reason for this sickness? हमें अपने आप पर दोष लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्या कोई पाप के कारण है कि ये बीमारी मेरे जीवन में आ रहा है. May not be, but we can examine ourselves. शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अपने आप को जांच सकते हैं हम. Because even if the reason is a sin in our life also, God can forgive and also heal us. और शायद पाप के कारण भी हम बीमार हुए हैं, तो भी परमेश्वर हमें क्षमा करके हमें चंगा कर सकता है. But in any case, before prayer is good, is anything to confess before God? और इसलिए एक अच्छा मौका है कि जब हम हमारा जीवन को जांच के कुछ प्रभु के सामने कबूल करना बाकी है, तो हम कबूल कर सकते हैं. And also anything to confess one another. और कोई बात हमें एक दूसरे से अगर कबूल करना है, Confess one another in the context where it is committed. और एक दूसरे से कबूल करने का मतलब यह है कि जिधर हमने पाप किया है उस जगह पे जाके कबूल करना है. For example, while sitting to pray, I remember that I spoke to my wife angrily. Then I need to confess to her only. I need not come here at church and tell to others. इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा हूँ, तो मुझे याद आया कि मेरा पत्नी से मैंने गुस्से में बात किया, तो मुझे जाके मेरा पत्नी से कबूल करना है, मुझे यहाँ पे आके कलीसिया में कबूल करने का जरूरत नहीं है. So it is always good to check, examine our conscience. इसलिए हमारा विवेक को हमें जांचना जरूरी है. Jesus told in Mark 11:25 also, whenever you stand praying, forgive if you have anything against anybody. यीशु ने मरकोस 11:25 में ऐसा कहा है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की और कुछ विरोध हो तो क्षमा करो. So it is good we have that continual habit every day. We give forgiveness and we ask forgiveness. इसलिए ये एक अच्छा आदत है कि हमारा जीवन में हम हर दिन हम क्षमा दे और क्षमा ले हर दिन. So that whenever we pray, we can always pray with a clear conscience. इसलिए कि हम जब भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो हम एकदम शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते हैं. We always confess before God, and we also sorted out things with the people around us. हम परमेश्वर के सामने हमारा विवेक को एकदम शुद्ध किया है, सब कुछ पाप क्षमा पाया है, और एक दूसरे के साथ भी हमारा रिश्ते में हमने सब कुछ शुद्ध किया है. This passage especially emphasized in the context of healing. और ये जो वचन याकूब में है, वो खास करके जो चंगाई के विषय में उधर बताया है. So whether we are praying for healing, for any other need, it is good to keep that in mind. Reconcile with others, reconcile before God. इसलिए शायद हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, या तो और कोई जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं. ये बात हमें याद रखना है कि हम सबके साथ मेल मिलाप में जीना बहुत जरूरी है. We should remember, it is not the length of time we pray that is important. हमें याद रखना है कि जितना देरी से हम प्रार्थना करते हैं वो मुख्य बात नहीं है. You know, some people say, I prayed 1 hour, I prayed 2 hours, etc. कोई बोलते हैं कि मैंने 1 घंटा प्रार्थना किया, 2 घंटा प्रार्थना किया. So it is not the length of
length of time we prayed what matters. इसलिए हम जितना देर प्रार्थना में बिताते हैं उससे कोई फर्क नहीं होता है. And I really like this that James 5:16 we read the effective prayer of a righteous man can accomplish much. याकूब 5:16 में एक सुंदर वचन है जिसमें से लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. So think about the effective prayer. It's not long prayer. इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रभावशाली या तो प्रभाव लाने वाला प्रार्थना. नो नहीं, ऐसे नहीं लिखा है कि बहुत लंबा प्रार्थना. And the effective prayer of a righteous man. और इधर लिखा है कि धर्मी जन का प्रभाव लाने वाला प्रार्थना. So who is praying? That matters. कौन प्रार्थना करना है उससे फर्क होता है. Meaning not about some people. That person who is praying, has he set right the things? और बहुत बड़े लोग नहीं, लेकिन जो प्रार्थना कर रहा है उस व्यक्ति का जीवन में सब बातें ठीक है क्या, उससे फर्क होता है. Is his things in order before people and before God? क्या उसका सब बात ठीक है लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने. So what a promise. The effective prayer of a righteous man avails much. इसलिए धर्मी जन का प्रभाव का प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है. Yeah, this is an amazing promise we can always cling to. ये बहुत ही अद्भुत वायदा है जिसकी और हम दावा कर सकते So हैं. more than anything, it indicates that importance of preserving our life in a way that is pleasing before God. और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने एकदम शुद्ध करके रखने का महत्व हम जानते हैं. Because it is a righteous man's effective prayer which will avail much. क्योंकि कि धर्मी जन की जो प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ होता है. So he is clarifying that in the next verse. अगले वचन में वो वापस उसको बताता है. Elijah was a man with a nature like ours. एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था. So when James meant the effective prayer for a righteous man, he did not mean like some well-known global man of God. That is not what he meant. जब उन्होंने बोला कि धर्मी जन का प्रार्थना, उसने ये मतलब नहीं था कि जो बहुत जाने वाला सब दुनिया के लोग जानने वाला ऐसा प्रभु का जन कोई था. He said people like us. वो उसका मतलब था कि हमारे जैसे लोग, We can be righteous. हम जो है धर्मी बन सकते हैं. And he realized Elijah was a man with a nature like ours. एलिया जो जहाँ हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था. And when he prayed earnestly that it would not rain, it did not rain. और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, तो 3.5 वर्ष तक उसमें बरसात नहीं हुई. It happened in Israel. उस समय इजराइल में ऐसा हुआ था. After 3.5 years, when he prayed, Lord, please send, God sent rain. जब 3.5 साल के बाद उसने वापस प्रार्थना की बरसात होना चाहिए, तो परमेश्वर ने बारिश भेजा. So about Elijah's prayer, that is written in 1 Kings chapter 18. पहला राजा उसका 18 वचन में उसका प्रार्थना के बारे में लिखा है. Bible is full of really exciting stories. बाइबल जो है बहुत सारा ऐसा उत्साह देने वाला ऐसा कहानियों से भरा हुआ है. So this is a homework for you. Can go home and read 1 Kings chapter 18. आप लोग घर पे जाके ये पढ़ सकते हैं पहला राजा 18 अध्याय का पूरा कहानी. But I just want to say how that Elijah, who has same nature like ordinary man like us, prayed. What was the kind of his prayer? मुझे खाली ये बात बताना है कि एलिया जो है हमारे समान जो मनुष्य था, उसने कैसा प्रार्थना किया, क्या खासियत था उसका प्रार्थना का. In that book, it's very interesting. It is mentioned very interesting. Something really funny also. The way it compared his prayer and the prayers of some 400 people. और उस पुस्तक में एलिया का प्रार्थना और जो अन्य लोग अन्य देवता को प्रार्थना करने वाले लोगों का प्रार्थना का तुलना उधर किया है. बहुत रोमांचक रीति से लिखा है उधर. 400 people prayed the whole day. जो 400 लोग थे उन्होंने पूरा दिन प्रार्थना किया. But Elijah's prayer, Elijah prepared before prayer. लेकिन एलिया का प्रार्थना में एलिया ने पहला तैयार किया फिर प्रार्थना किया. For example, in those times they had an altar on which sacrifices offered to God. और उस समय एक वेदी था जिसके ऊपर उन लोग बलिदान करते थे. The first thing Elijah did, he allowed these 400 people pray full day initially. पहला उन्होंने जो वे लोग थे 400 लोग, उन्होंने उनको पूरा दिन प्रार्थना करने के लिए अनुमति दिया. But nothing happened. लेकिन कुछ हुआ नहीं. But Elijah, when he started prayer, he quickly rebuilt the altar. लेकिन एलिया जैसा प्रार्थना शुरू किया, उसने पहला जो है उसका वेदी को बना दिया. Meaning it's a example how he set right the things first.
और एक उदाहरण है कि उसने अपना जीवन को सब कैसा ठीक किया. Instead of pretending everything is okay, he accept the reality. Stones are broken down. I had to repair it first. उसने ऐसा नाटक नहीं किया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने बोला कि हाँ मेरा जीवन में बहुत कुछ सुधारना बाकी है. उसने सब पत्थरों को ठीक करके किया, प्रार्थना शुरू किया. Whether in his life or in our family, in the church, anything to be corrected, to be set right, that should be done first. और हमारा व्यक्तिगत जीवन में होने दो, हमारा परिवार में या कलीसिया में कुछ भी ठीक करना है तो पहला वो ठीक करना चाहिए. So he did that first. उसने पहला वो किया. And at the end of that, his prayer, he made just a brief prayer. और उसका अंत में उसने बहुत ही संक्षिप्त में एक छोटा सा प्रार्थना किया. Lord, please listen to us, send rain. Yeah. He prayed, and actually what happened is the Lord's fire came and fell and burned the sacrifice he offered. उसने खाली एक वाक्य में प्रार्थना की, परमेश्वर उत्तर देना, तो परमेश्वर ने तुरंत वो आग स्वर्ग से उतर के उसका जो बलि को पूरा भस्म कर दिया. Yeah, after he prepared everything, his prayer itself was so brief. उसने सब तैयार करने के बाद उसका प्रार्थना बहुत छोटा था. But he set his attention to correct things, to set right things, to rebuild the altar. और उसने अपना ध्यान जो है और जो वेदी का जो भी बात है वो ठीक करने में, उसमें सब उसने ध्यान लगाया. And God answered his prayer, and people understood this prayer God answered. और परमेश्वर ने उसका प्रार्थना का उत्तर दिया. लोग समझ गए कि ये परमेश्वर जो है वास्तविक परमेश्वर And the है. other 400 people who left the real God and followed after idols and other, God did not answer their prayer, even though it was one day long prayer. और दूसरे लोग जो अन्य देवता के पीछे जाते थे और परमेश्वर को छोड़ दिया, या उन्होंने पूरा दिन प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया. And the conclusion is that everybody realized that God, He is the real God. और इसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग को मालूम पड़ गया कि ये परमेश्वर जो है वो ही वास्तविक परमेश्वर है. And soon after that, God sent rain as Elijah prayed. और उसके बाद परमेश्वर ने तुरंत बरसात भेजा जब एलिया ने वापस प्रार्थना किया. In the New Testament, the Lord very often emphasized on the persistent prayer. और नया नियम में यीशु ने बहुत बार जो लगातार प्रार्थना करना चाहिए उसके बारे में बहुत बार बोला है. Meaning, we should not just casually pray and forget about it. इसका मतलब है कि हम केवल एक बार प्रार्थना करके ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए. Jesus told that in Luke chapter 11. लूका का 11 अध्याय में He told through an exercise. Suppose you have a friend, in the night you go to him. उसका छठा अध्याय से ऐसा लिखता है कि क्योंकि एक मित्र अगर तुम्हारे पास है जो रात को आता है. Yeah, Luke 11:5 onwards. 5 से. And he is saying that a friend has visited my home and I had nothing to give to him. और वो रात को तुम्हारे घर में आता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए. So this friend told, we are sleeping, our children are also with me, they are sleeping, I can't get up and give you any food now. उनका पड़ोसी ने बोला कि मेरा परिवार के लोग सब सोए, अभी मैं उठ के कुछ दे नहीं सकता हूँ तेरे. But this friend did not leave. He continued to knock the door. My friend, I have to get this food because somebody is waiting for at my home, hungry. You have to give me. He had to get up. लेकिन ये दोस्त ने तो छोड़ा नहीं. उसने दरवाजा पे खटखटाते ही गया कि तुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा घर में कोई आया है, उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, ऐसा उसने जबरदस्ती किया. So it's mentioned that even though he was unwilling to get, he was fast asleep, but because of his friends' persistence, he got up and gave him enough food. यहाँ तक कि उसका जो मित्र है उन्हें मदद करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो सोया हुआ था, लेकिन इनका जो लगातार मांगने के वजह से वो अपना नींद से उठ के उन्हें जितना चाहिए था उतना दे दिया. And the end of that, Jesus told, if evil people will give good gifts to their own children, how much more God will give us Holy Spirit if you pray. और आखिर 13 वचन में यीशु कहता है कि अगर जो बुरे लोग जो है, दुष्ट लोग जो है अपने बच्चों को अच्छा दान देते हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें बढ़कर क्यों नहीं देगा. So just like George Muller prayed for his close relatives persistently, we can also desire, commit, Lord, I am not going to leave you. This is a prayer according to your will. I am not going to leave you. You have to answer me. In a like that persistently we can pray. जैसा जॉर्ज मुलर ने अपना जो रिश्तेदारों के लिए
बहुत लगातार प्रार्थना किया। वैसे ही हम भी हमारा जो दो नज़दीक के रिश्तेदार है, लोग हैं, उनके लिए लगातार बिना बिना छोड़े हुए परमेश्वर से मांगते रहेंगे। We read a good example in Acts chapter 12. प्रेरितों का वचन उसका 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं। Peter was arrested by the king for preaching the gospel. He was put in the prison. और पत्रुस को जो है सुसमाचार सुनाने के लिए बंदी गृह में डाल दिया। So we can read that. 12 अध्याय, Acts chapter 12 verse 5. 12 का 5। So when Peter was in the jail, what did his brothers and sisters do? जब पत्रुस जो है बंदी गृह में था, उनका भाई बहन क्या कर रहे थे? So it's written that when Peter was kept in the prison, prayer was offered to God fervently by the church. सो बंदी गृह में पत्रुस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। So Peter was not afraid of anything. He was silently in the prison. पत्रुस को कुछ डर नहीं था, वो आराम से बंदी गृह में था। But the church took the burden on them. लेकिन जो कलीसिया है उसके लिए बोझ लेके प्रार्थना किया। And it's written they fervently prayed to God on behalf of Peter. और उधर लिखा है कि उन्होंने लगातार परमेश्वर के सामने पत्रुस के लिए प्रार्थना So किया। that indicates how God is entrusting us the responsibility for our brothers and sisters. इसलिए यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर हमारा भाई बहनों का जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर डालता है। So we can look at ourselves. Some of us are very keen in posting prayer requests. हाँ, हम जो है प्रार्थना का संदेश बेचने में बहुत रुचि रखता है। That is good. That is a sign of humility. I need the help of others. वो एक अच्छा बात है कि प्रार्थना का बेचना, कि हम जानते हैं कि हमें दूसरों का प्रार्थना का जरूरत है, हम नम्र होते हैं। Even Apostle Paul requested prayers of others. It's a good thing to do. और प्रेरित पौलुस भी दूसरों का प्रार्थना का विनती करता है। But we have also a responsibility. When someone else is in need, I have also a responsibility to pray for others. वैसे ही हमारा भी जिम्मेदारी है, जब दूसरे लोग प्रार्थना का मांग करते हैं तो हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। So when church prayed for Peter, what happened? जब कलीसिया ने पत्रुस के लिए प्रार्थना किया तो क्या हुआ? There was a risk he could be executed. उधर एक बड़ा खतरा था कि उसको मार डाल सकता Because था। some other in the same chapter, some other apostles were executed at the same time. और उसी समय में दूसरा जो प्रेरित को मार दिया था। But when church prayed for Peter, an angel appeared to Peter. जब कलीसिया ने पत्रुस के लिए प्रार्थना की, एक स्वर्गदूत पत्रुस को प्रकट हुआ। And the angel told Peter, get up quickly. और स्वर्गदूत ने पत्रुस को बोला तुरंत खड़े हो जा। And even chain that was it fell down from his hand. जो जंजीर उसके हाथ में थे वो भी नीचे गिर गया। And the angel told Peter, quickly dress up and come with me. और उन्होंने बोला पत्रुस जल्दी से कपड़ा पहन के मेरे साथ आ जाओ। And the angel guided him through all those iron doors, iron gates, and took him out. जो लोखंड का दरवाजे थे उनके सबसे आगे बढ़ा के स्वर्गदूत ने उसके आगे बढ़ाया। And angel disappeared. और जो स्वर्गदूत है चला गया। So God can do miracles. और परमेश्वर जो है अद्भुत काम कर सकता है। And so it's good to know that we have a responsibility to pray for others. इसलिए हमें एक जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। Especially when we ask prayers of others, remind us, I have also a responsibility to pray for others. खास करके हम दूसरों से जब प्रार्थना का अपेक्षा करते हैं, हमें याद रखना है कि मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। This is something which we can learn from what Jesus told to his disciples. एक बात हम सीख सकते हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेले लोग से कहा। When Jesus was in that agony on the Garden of Gethsemane, यीशु मसीह जब बहुत ही दर्द में था उस गेत्सेमनी बगीचा में, the disciples could not share the burden of struggle of Jesus. जो प्रेरित जो थे यीशु मसीह का जो संघर्ष है उसका साथ नहीं दे सकता था। Even though he asked them to pray, they took it light. They just dozed off. They slept. यीशु मसीह ने यहाँ तक उन्हें मांगा कि प्रार्थना करे, लेकिन वो तो नींद में, गहरा नींद में थे, वो
सो गए। So Jesus asked him, you could not watch me even for 1 hour. तो यीशु मसीह उनसे पूछता है कि क्या तू एक घड़ी तक मुझसे मेरे साथ रह के प्रार्थना नहीं कर सकता था? And he said, the spirit is willing, but the flesh is weak. यीशु ने कहा कि तुम्हारा जो आत्मा तैयार है लेकिन शरीर जो है दुर्बल है। So when I read this was the lesson Lord taught me. और जब मैंने ये पढ़ा तो परमेश्वर ने ये संदेश मुझे दिया, If I am in the flesh, I am walking according to the wishes of the flesh. जब मैं शरीर के अनुसार हूँ, शरीर के इच्छा के अनुसार मैं चलता रहता हूँ, I will not recognize the need to trust God, need to pray. तभी मैं प्रार्थना करने का, परमेश्वर को भरोसा रखने का जो जरूरत है मैं महसूस नहीं कर पाएगा। Because indirectly I am saying I can manage myself. My flesh is strong. I am strong enough to take care of this situation. क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं काबिल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा जो शरीर है बलवंत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। But those who are walking in the spirit, they will recognize the need and burden for prayer. लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलता है उन्हें महसूस होगा कि जो प्रार्थना करने का जरूरत जो है। So Lord wants us to walk in the spirit, not by led by the flesh. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के अनुसार चले, हम शरीर के अनुसार न चले। So I will just conclude by pointing out something extremely encouraging. और एक जो बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला वचन है उसकी और मैं जाना चाहता हूँ। You can see here the result of a fervent prayer. और जो लगातार प्रार्थना बहुत गंभीरता से प्रार्थना करने का जो परिणाम है हम देख सकते हैं। That is about Hannah in 1 Samuel chapter 1. वो हन्ना के बारे में है जो पहला सामुएल पहला अध्याय में है। You know, Hannah had no children and she was really craving for children. हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था और वो बच्चे के लिए बहुत ही इच्छुक थी। And the other woman was putting her down, discouraged. See, I have children, you have no children. और दूसरा जो स्त्री थी वो उनका मजाक कर रही थी कि क्या तेरे पास कोई बच्चा नहीं, मेरे पास तो बच्चा है। God has answered my prayer. God has not answered your prayer. परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना का उत्तर दिया, तेरा प्रार्थना का तो परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। So she was so distressed inside, so discouraged and struggling in her spirit. इसलिए वो बहुत निराश थी, उदास थी और उसका आत्मा में बहुत नीचा महसूस कर रही थी। And one day she went to pray in the temple. इसलिए एक दिन वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गई। I mean, in that Eli, who is the priest, also misunderstood her. एली जो याजक था उन्होंने भी उसे उसका गलत समझा उसे। And he thought this a bad, evil man, a drunken woman. That's what Eli told. उसको लगा कि वो दारू पी के उधर आई है, वो बुरी स्त्री है। So this is a lesson. Even if elders or pastors, leaders don't get discouraged. इसलिए यहाँ पे एक बात हम सीखते हैं कि अगर हमारा अगुए या पास्टर लोग भी हमें निराश करते हैं तो हमें निराश होने का जरूरत नहीं है। They are all human beings. They can misunderstand you. वो सब मनुष्य है, वो हमें गलत समझ सकते हैं। But the Lord doesn't misunderstand. लेकिन परमेश्वर हमें गलत नहीं समझता है। So she said, no, I am a woman with an oppressed spirit. 1 Samuel 1:15. पहला सामुएल 1:15 में वह कहती है कि हन्ना ने कहा कि नहीं, मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूँ। I have not drunk any alcohol. मैंने तो न दाख मधु पिया है और न मदिरा। I was just pouring out my soul before the Lord. मैंने अपने मन को की बात खोलकर यहोवा से कही है। Because her lips were moving, no words were coming. Her heart was praying out to God. उसका होठ जो है हिल रही थी लेकिन उसका आवाज कुछ बाहर नहीं आता क्योंकि उसका मन से वो परमेश्वर की ओर पुकार रही थी। And she requested that, please don't misunderstand. I am not a bad woman. वो उन्होंने विनंती किया कि तुम मुझे गलत मत समझिए, मैं जो है बुरी स्त्री नहीं हूँ। My spirit was just expressing the pain and need of my heart to the Lord. मेरा आत्मा जो है, मेरा मन का जो दुख और बोझ जो है परमेश्वर की ओर मैं उंडेल रही थी। And Eli, the priest, encouraged her. एली जो याजक है उन्होंने उसके प्रोत्साहन दिया। And there's a beautiful verse written, 1 Samuel 1:18. और एक सुंदर वचन लिखा है पहला शमूएल 1:18। So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। So this is why this passage speaks to us so much. ये वचन जो है हमसे बात करता है। When we pray effectively before God, pour out hearts before God. जब हम
बहुत ही इच्छा के साथ, बहुत ही जबरदस्ती के साथ परमेश्वर के सामने हमारा मन को उंडेल देता है, we will receive peace in our hearts. तब हमारा मन में वो शांति परमेश्वर भर देता है, Supernatural way. जो हमारा साधारण रीति से बढ़कर जो है। And Hannah's mentioned her face was no longer sad. और हन्ना के बारे में लिखा है कि उसका मुंह फिर उदास न रहा। Earlier it was visible on her. Everybody could say this woman, the woman is a woman of sorrow, some problem inside her. और इसके पहले तो दिख जाता था उसको चेहरे पे कि ये स्त्री जो है बहुत ही उदास एक स्त्री है। But when she unburdened her burden before God, लेकिन उसने जब अपना मन की बात परमेश्वर के सामने पूरा उंडेल दिया, her face was no longer sad. उसका मुंह फिर उदास न रहा। I think God wants to enable all of us to have such experiences. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे हर एक के जीवन में ऐसा अनुभव हो। Whenever we are in need, learn to pray before God. जब भी हमारा जरूरत है तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने सीखना है। More than requesting others to pray, we can pour out our heart before God. उससे भी बढ़कर कि हम दूसरों से प्रार्थना करने के लिए मांग करते हैं, उससे भी ज्यादा हम परमेश्वर के सामने अपना मन को उंडेल सकते हैं। And it can be said about us, this brother, this sister, his face is no more sad. हमारे बारे में भाई ये बहन के बारे में ऐसा बताया जा सकता है कि इसका मुंह कभी उदास न रहा। I want to encourage everyone that in the coming days, let us seek the Lord in all situations that we are in. इसलिए मैं प्रोत्साहन हर एक को देना चाहता हूँ कि जो भी परिस्थिति में है हम सब परमेश्वर की ओर ढूंढें। We may not have answers for many things, but we can seek the Lord. हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। So take opportunity in personal prayer, family prayer. और इसलिए हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना होने दो, हमारा पारिवारिक प्रार्थना होने दो, उसमें अवसर लेना। We can meet together and pray. हम एक साथ मिलके प्रार्थना कर सकते हैं। Sometimes it's good to have a company for prayer. इसलिए हम एक साथ कभी-कभी मिलके प्रार्थना करना भी बहुत अच्छी बात है। We also have sisters prayer meeting, brothers prayer meeting, opportunities. और शायद बहनों का प्रार्थना करना और भाइयों को प्रार्थना करना, ऐसा बहुत सारा अवसर हम बना सकते हैं। More than anything, let there be heart or trust in God in all challenges that we face. सबसे बढ़कर हमारा जो भी चुनौती है उसमें परमेश्वर पर भरोसा करने का मन हमारे अंदर होना चाहिए। And never be discouraged. और कभी निराश नहीं होना। Even if prayers are delayed, God will answer. हमारा प्रार्थना देरी होगा तो भी परमेश्वर उत्तर देगा। Remember this, His ears are open to our prayers. याद रखना कि परमेश्वर का कान जो है हमारा प्रार्थना सुनने के लिए एकदम खुला है। Amen. आमीन।